اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ معزز صحافی حضرات کیمرہ مین السلام علیکم۔ آج گورنر سندھ کامران ٹسوری بھائی جو کہ وفاق کے نمائندے بھی ہیں اور ہمارے نمائندے بھی، آج ہمارے پاس ایک اہم پیغام وفاق کا اور موجودہ حالات کے حوالے سے لے کے آئے تھے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ پہلے یہ آپ سے بات کر لیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل خالد بھائی کے پاس سربراہ MQM پاکستان کے پاس میں آج یہاں آیا تھا۔ میں نے خالد بھائی کو ٹیلی فون کیا اور ان کو میں نے کہا کہ ایک پیغام یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سلامتی کو لے کے اور پاکستان کا جو دنیا بھر میں ایک امیج ہے اس کو لے کے یہاں پر ایک پاک بحریہ کی امن ایکسرسائز ایکسپو میں جاری ہے، جس میں کم و بیش 40 ممالک کے مندوبین اور پوری دنیا بھر سے جو بحریہ ہے اس کے نمائندگان یہاں موجود ہیں۔ ایکسپو میں ان کے سٹالز موجود ہیں، دنیا بھر سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ یہ ایکسرسائز جاری ہے اور MQM پاکستان کی طرف سے کل بروز اتوار ایک غیر معینہ مدت کے لیے دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کی خالد بھائی نے بتایا کہ پوری تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ تمام ان کے کارکنان، ان کے لوگ اس بات پہ بضد تھے اور رابطہ کمیٹی نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک غیر معینہ مدت کا دھرنا دینے جا رہے ہیں، جس میں ان کا وہی مطالبہ جو کہ آپ سب کے سامنے پہلے آ چکا ہے۔ خالد بھائی رابطہ کمیٹی کے ساتھ کئی دفعہ گورنر ہاؤس بھی آئے اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات رکھی کہ ایک ایگریمنٹ جس کے اندر یہ طے شدہ بات تھی، دستخط شدہ بات تھی، اور اس کا 7ویں نمبر پر جو ایک لکھا گیا تھا کہ ڈی لمیٹیشن کا جو ایشو ہے اس کو مل جل کر حل کیا جائے گا۔ تو MQM کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے ڈی لمیٹیشن کا جو بھی پرابلم تھی اس کو ریزالو کیا جائے گا۔ MQM کی ڈیمانڈ تھی کہ تقریباً 73 حلقوں میں یہ پرابلم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، لیکن بہت سارے جب مذاکرات ہوئے تو پیپلز پارٹی کے دوستوں نے یہ مانا کہ ٹھیک ہے، ہم 53 حلقوں میں اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں اور اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو مان کر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہاں ایشوز ہیں۔ لیکن میں بلکہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی راستے میں جب میں آ رہا تھا تو میری چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی اور بلاول صاحب سے بھی میری بات ہوئی۔ چیف منسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن سے پہلے ہی ہم یہ چاہتے تھے کہ الیکشن پہ کوئی سوال نہ اٹھے۔ MQM پاکستان ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ایک حقیقت ہے، اور ہم نے اس کو مانتے ہوئے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھ دیا تھا اور نوٹیفیکیشن بھی کر دیا تھا 10/1 کا نوٹیفائی ہو گیا تھا کہ یہ 53 حلقوں میں ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ دوبارہ کی جائے گی، حلقے بڑھائے جائیں گے۔ لیکن کسی بھی وجہ سے الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں مانی اور انہوں نے پھر اس الیکشن کا انعقاد کرا دیا، جس پر کراچی کی عوام نے بھی سوالیہ نشان اٹھایا ہے، اور مختلف آرگنائزیشنز جو یہاں کام کر رہی تھیں الیکشن میں ووٹنگ تناسب کے حوالے سے، انہوں نے بھی اس بات کو ہر جگہ پر میڈیا کے سامنے اجاگر کیا کہ بہت جگہوں پر تو نہ ہونے کے برابر تھا ووٹرز کا تناسب۔ تو ان سب باتوں کو لے کر MQM پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ کل ایک دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ میں نے خالد بھائی کے سامنے اور رابطہ کمیٹی کے معززین کے سامنے یہ بات رکھی، یہ درخواست رکھی کہ ایک ایسی جو ایکسرسائز ہے جو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج کے لیے کی جا رہی ہے، تو اس میں اگر کل کا دھرنا اسٹارٹ ہوتا ہے اور غیر معینہ مدت کے لیے ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی افیکٹ پڑے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا ہے پاکستان، کراچی خاص طور پہ، تو اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ لے پاکستان کے لیے۔ حالانکہ پہلے بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں کے سامنے
یہ بات رکھی گئی تھی جب چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے، لیکن انہوں نے تو اس بات کو نہیں مانا، اس کو ریفیوز کیا. لیکن میں نے خالد بھائی کے سامنے یہ درخواست رکھی ہے وفاق کی طرف سے، ہماری پاک بحریہ کی طرف سے بھی، کہ اس کو آپ کنسیڈر کریں. اور میں سمجھتا ہوں جو بھی مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں پیپلز پارٹی سے، وہ ایم کیو ایم اور اس کی رابطہ کمیٹی کی صوابدید ہے. لیکن اس حد تک کہ 14 تاریخ تک یہ امن ایکسرسائز چل رہی ہیں، میری یہ درخواست تھی اور وفاق کی طرف سے کہ اس کو فی الحال مؤخر کیا جائے، تاکہ کوئی ایسا پوائنٹ یا ایشو کسی کو نہ ملے پاکستان کے خلاف کہ جی پاکستان میں ایک اتنی بڑی دنیا بھر سے بحریہ اور مندوبین موجود ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک دھرنا دے رہی ہے. تو باقی بات خالد بھائی کریں گے. میں نے ان کے سامنے یہ درخواست رکھی تھی. خالد بھائی بات کر لیں. جی بہت بہت شکریہ. آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری جو زندگیوں کا مقصد اور اس پوری جد و جہد کی بنیاد اسی ترجیح پہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان بھی سب سے اہم بات اس شہر کے حوالے سے کہ جس کی وجہ سے جو آج بھی یہاں سے سیاسی اور اقتدار کا حکومت کا دارالخلافہ اور کیپٹل کی شفٹ ہونے کے باوجود آج تک کراچی پاکستان کا اقتصادی، معاشی، صنعتی، تجارتی، کاروباری اور نظریاتی کیپٹل ہے. اس کے امن کے ساتھ، اس کی ترقی کے ساتھ، اس کی خوشحالی کے ساتھ براہ راست پاکستان کا استحکام اور پاکستان کے استحکام کی ضمانت اس سے وابستہ ہے. ہم جو انہوں نے بات کی ہے، ہم ایسے تمام معاملات پر ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات جو کہ ہیں بھی نہیں ہمارے، وہ عوام جس کے لیے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں، ہم نے پاکستان کی خاطر قدم قدم پر بار بار اپنے حق سے دستبردار ہو کر پاکستان کو آگے رکھا ہے. آپ تاریخ بھی دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اسلام آباد میں بڑا اہم غیر ملکی دورہ ہو رہا ہے سربراہان کا، اپنے دھرنے کو کسی بھی صورت میں پاکستان کی قیمت پہ بھی اس دھرنے کو انہوں نے ڈیلے نہیں کیا تھا، مؤخر نہیں کیا تھا، تبدیل نہیں کیا تھا. ہم پھر پاکستان اور پاکستان کی محبت کے خاطر یہ قربانی دینے کو تیار ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں ہے، اس شہر کا حق ہے جس پہ بات کر رہے ہیں. اثر نو حلقہ بندیاں کرتی کراچی. ہماری یہ بات بھی مان کر یہ ہمارا موقف درست، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کسی نے بھی ہمارے اس موقف کو غلط نہیں ثابت کیا ہے، یہ غلط نہیں قرار دیا ہے کہ کراچی میں جو یو سی کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، بلدیاتی حلقہ بندی ہوئی ہیں، وہ بددیانتی بھی وہ تھی مبنی، وہ غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کر کے کی گئی ہے. کراچی کی موجودہ جو آبادی ڈکلیئر کی گئی ہے اس لحاظ سے کم 103 سے 110 یو سی کم کی ہے. اور جب مذاکرات ہوئے تو ہم نے کہا کہ باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم 73 سیٹیں، 73 یو سی کی حلقہ بندیوں میں کے ذریعے اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 53 تک کے لیے تیاری کر لی تھی. انتخابات کرا دیے گئے، اس کے باوجود وہ انتخابات جو ہر لحاظ سے غیر قانونی، غیر آئینی تھے، الیکشن کمیشن کے تمام جو اس کے قوانین ہیں اس کے خلاف تھے، جو قومی آئین کے خلاف تھے. تو ہم اس کے باوجود اگر ہم نے ہمارا مقصد اس مطالبے کے پیچھے اپنا میئر لانا ہوتا تو اس انتخابات کے بعد ہم اس مطالبے کو دہراتے نہیں.
हमारा ये मुतालबा कराची का हक कराची को वापस दिलाने के लिए था। हैदराबाद कराची में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को ज़बरदस्ती शामिल कर दिया गया, पूरे सिंध में कहीं नहीं किया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंतज़ामी ज़रूरत थी, ये किसी की सियासी ज़रूरत हो सकती है। तो इसीलिए हमने ये मुतालबा दोबारा रखा था, इस पर बात भी की थी। संजीदगी नहीं देखकर तो हमें ये एक इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ रहा था। हम आपकी ये बात मान भी लें तो हम इस अपने मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और ये कदम जो हमने उठाया इंतहाई बहुत मजबूरी में उठाया था। हम इस शहर में धरना देना अगर किसी का सबसे ज़्यादा हक है तो हमारा ही है, लेकिन हमने इस हक को सबसे कम इस्तेमाल किया है। हम आपके कहने पे अभी राब्ता कमेटी बैठेगी, इंशाअल्लाह ताला। हमने कभी भी वफाक को और इदारों को, कौम की सलामती को, कौम की ज़रूरत और मफाद पर को ही तरजीह दी है, अपने सियासी ज़रूरियात को नहीं, अपने नारों को नहीं। हम आपकी बात इंशाअल्लाह ताला राब्ता कमेटी आज बैठ के इसकी कोई ना कोई शक्ल निकालेगी, लेकिन ये बात बड़ी वजाहत से वफाक तक भी, इदारों तक भी, रियासत तक भी, पाकिस्तान के हुक्मरानों तक भी, वफाकी हुकूमत तक भी, सूबाई हुकूमत तक पहुँचनी चाहिए कि इस मुतालबे से दस्तबरदारी किसी तौर पे भी मुमकिन नहीं है। इलेक्शन में तो हमने कर दी थी दस्तबरदारी, और आज नहीं तो कल पाकिस्तान नेवी की जैसे ही ये जो अमन की कॉन्फ्रेंस है और जो उस पर मशक हो रही है, उसके बाद MKM भरपूर तरीके से इस कदम को दोबारा उठाने का हक़ रखती है। इसकी तारीख़ का हम फ़ैसला कर लेंगे। ज़िमनी इंतख़ाबात भी सर पे हैं, तो हो सकता है हमारी टाइमिंग की तरजीहात मुख्तलिफ हों, और अभी हम बैठ के आपको इस हवाले से अपना हतमी फ़ैसला बता देंगे। लेकिन आप सब जानते हैं, जो ये लोग खड़े हैं, पाकिस्तान की आवाम के वो तबका है जिसकी हुब्बुल वतनी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता। जो टैक्स देने से लेकर इस मेहनत करने तक, और जब पाकिस्तान की जमहूरियत को और हुकूमतों को बनाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ी है तो हमने कुर्बानी दी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको अपने फ़ैसले से आगाह कर रहे हैं। तारीख़ तो ये बताती है कि हम इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई रुकावट डालना नहीं चाहेंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये मुतालबा ये पहुँचाइएगा बात हमारी जी बिल्कुल कि ये MKM की ज़रूरत नहीं, कराची की भी ज़रूरत नहीं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के वक़ार की बात भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया खालिद भाई कि आपने इस बात को कंसीडर किया और राब्ता कमेटी से बैठकर आप फैसला भी करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक ऐसी कॉन्फ्रेंस और नेवी के आला हुकाम जो हैं बहरिया के, उन्होंने राब्ता किया और आप तक ये पैगाम पहुँचाने का कहा। तो मैं समझता हूँ कि आपका फ़ैसला हमेशा से जैसे पाकिस्तान के हक़ में रहा है, तो ये भी इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ से एक पॉजिटिव होगा। शुक्रिया आपका बहुत। गवर्नर साहब, आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आपकी जमात पर हमेशा जो है वफाक को खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शक की निगाह से देखती रही है और शायद देखती भी है। तो वो शक की निगाह को ख़त्म करने में आपने अपना क्या किरदार अदा किया? MKM के दफातर का मुतालबा भी जो मुआहदा हुआ था उसमें शामिल था, और वो मुतालबा भी MKM का है, क्या उस हवाले से भी कोई किरदार आप अदा कर रहे हैं? देखिए, हमेशा से तारीख़ गवाह है कि जिस पे ज़्यादा शक होता है प्यार भी उसी से होता है। तो वो प्यार पाकिस्तान के साथ है और हमारा पाकिस्तान के साथ है। दफातर की जहाँ तक आपने बात की, जो हमारा एग्रीमेंट, जब मैं खुद राब्ता कमेटी का हिस्सा था, मुझे इस बात का पता है कि खालिद भाई ने हमेशा जब भी मुज़ाकरात हुए हैं तो मिसिंग पर्सनस के हवाले से और दफातर के हवाले से ये पहला पॉइंट रहा है। और आज भी जहाँ जहाँ इस बात को किया जाता है उसी में ये बात पहले रखी जाती है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं और ऑफिसेज जो है वो हमारा पहला मुतालबा है, और उसके बाद ही दूसरी कोई बात की जाती है। गवर्नर साहब, हम ये देख रहे हैं कि बार बार कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों की तरफ से, MKM की तरफ से किया जा रहा है। अगर धरने की बात कर लें और जो बहरिया की मशक़ें हो रही हैं, तो आज जमात इस्लामी ने भी तो एहतजाज किया इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, उनको तो कॉम्प्रोमाइज़ करने का नहीं कहा गया। तो
यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किसी दबाव के तहत हो रहा है या कोई और बात है? और वो एहतजाज अब धरने में तब्दील होगा। देखें, जैसे खालिद भाई ने कहा और मैंने भी आपको बताया कि जमात इस्लामी तो फिर यहाँ एक जिस तरह से उनकी पोजीशन है आप सबके सामने, लेकिन जो एक बहुत बड़ी सियासी जमात अपने आप को पाकिस्तान की कहती है और कहती थी, जब उन्होंने एक ऐसे ब्रदर मुल्क जिसके ऊपर हम बहुत डिपेंड करते हैं, चाइना, उसके प्रेसिडेंट का दौरा मुलतवी करवा दिया लेकिन अपना धरना ख़त्म नहीं किया, तो इस पूरी बात का अगर आप जुज़ निकालें तो खालिद भाई की तरफ से यही बात थी कि हमेशा मुहब्बुल वतनी और पाकिस्तानियत और पहले पाकिस्तान का सबूत इसी जमात ने दिया है। और आज भी कोई ज़ोर नहीं है, जैसे आपने कहा, हम पर कोई किसी की कदगन नहीं थी, लेकिन जब एक बात आई कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज की बात है, तो अगर जमात इस्लामी ने वो बात नहीं रखी, लेकिन मैंने आके अगर दरख्वास्त खालिद भाई से की तो खालिद भाई की तरफ से यही कहा गया कि हम हमेशा पाकिस्तान को पहले रखेंगे। हमें इस बात से कोई इशू नहीं होता कि जमात इस्लामी ने नहीं माना या PTI ने नहीं माना, लेकिन MQM पाकिस्तान जो कि हमेशा से हुब्बुल वतनी में और ये जो बात की जाती है कि पाकिस्तान और बानियान पाकिस्तान की औलादों में से है, पाकिस्तान बनाने वालों में है, तो हमें इसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जो पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है उन पर ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है। देखिए, एक और बात बड़ी अहम बात ये है कि देखें, हमारा लॉजिस्टिक इस वक्त मूव कर गया था। हाँ, हमारे 1.5-2 करोड़ रुपए लग चुके थे और बैनर लग चुके थे और हमने अपने हिस्से का, हमारे तमाम कारकुनान सुबह से निकलने की तैयारियां कर रहे हैं इस वक्त। और सुन तो लो, एक बात तो कंप्लीट होने दो, बात तो सुने खालिद भाई से। हर दौर में हमेशा से देखा है, मुल्क का वसी तर मफाद देखा है और आज भी ये हुआ है। अब आप बताएं कि MQM किस पोजीशन पे यहाँ खड़ी है? पोजीशन पे ये है कि MQM की हुब्बुल वतनी की पोजीशन अगर इस फैसले से भी मुतासिर हो रही है तो फिर हमें कोई और फैसला करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर पोजीशन तो हमें अपने हुब्बुल वतनी की जतानी पड़ रही है ना, वो हमने आज फिर साबित की है। ये शहर मौजूद है, इस शहर को अमन का दोबारा गहवारा हमने ही बनाया है। इस शहर पे जब भी किसी किस्म के फसादात हुए हैं, कभी गौर कीजिएगा, उन इलाकों में नहीं हुए जहाँ पर हमारी अक्सरियत थी, कहीं और हुए हैं। तो मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा। हम खड़े हैं, 2-4 दिन का फ़र्क है, इस शहर की सड़कें हमारा इंतज़ार कर रही हैं और जिसको भी इस शहर का अमन प्यारा है, वो शहर का हक और हमारे मुतालबात पर फौरी तौर पर इक़दाम करें। एक मिनट किरण, लेडीज जी, चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी जो बात हुई है वो बात मैंने ऊपर खालिद भाई के सामने रखी थी, लेकिन अक्सरियत राय राब्ता कमेटी की ये थी कि हमने कोई मज़ाकरात नहीं करने हैं पीपल्स पार्टी के साथ। हमने पीपल्स पार्टी ने हमें पहले भी 3 महीने मुख्तलिफ बहानों से इस सारे प्रोसेस को तवील किया, लेकिन फिर खालिद भाई को जब मैंने ये बताया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि MQM पाकिस्तान एक हकीकत है, कराची की ख़ास तौर पे एक नुमाइंदा जमात है, हम ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और आज रात किसी वक्त वो ड्राफ्ट शेयर करेंगे खालिद भाई के साथ। तो खालिद भाई का ये कहना था कि ठीक है, एक दफ़ा ड्राफ्ट आ जाए, हम उसको देख लेते हैं, लेकिन खालिद भाई का ये कहना भी था कि ये मैसेज भी आप दे दें कि हम किसी सूरत भी इस धरने को ना मुलतवी करेंगे, ना इससे दस्तबरदार होंगे। आज सिर्फ इस बात को कंसीडर किया गया है कि पाकिस्तान की सलामती और उसकी बका के लिए एक ऐसी अमन एक्सरसाइज जो पाक बहरिया की तरफ से मुनक़िद की गई है, जिसमें दुनिया भर से मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की सालमियत और पहले पाकिस्तान को बात रखते हुए सिर्फ इसको कुछ दिनों के लिए मौखिर किया जाएगा और खालिद भाई ने कहा इसका अगला ऐलान फिर हम राब्ता कमेटी से डिसाइड करके करेंगे। मेरे ख्याल है हमने तो जहाँ पर मामला आ गया है कि नेवी यहाँ पे कर रही है, कराची उसका मेन शहर है और
तकरीबन 58 मुल्कों के मंदूबीन के अलावा जो इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे वो भी आ रहे हैं, और उन्हीं इलाकों में वो आकर होटलों में ठहरे हुए जहाँ पे कि हम धरना देने जा रहे थे। हमें ये इत्तला थी कि एग्ज़िबिशन जो है वो 12 तारीख की शाम को ख़त्म हो जाएगा। हम पहले 10 तारीख को कर रहे थे। हमने इसी को सामने रखते हुए 12 तारीख की रात को किया। इतनी लेट तो नहीं करते ना कभी हम, हमें आज करना भी होता तो हम दोपहर से करते। हमने वो नेवी के उसी इक़दाम को सामने रखते हुए रात के 7-8 बजे करना शुरू किया था, लेकिन हमें ये इल्म नहीं था कि जो एक्सरसाइज होनी है समंदर में उसमें भी इन्हीं जगहों पे लोग होंगे और हमें मुतासर करेगी, इसलिए हमने फिर ये बात सुनने के बाद तो बहरहाल हमारे तकरीबन राब्ता कमेटी के साथ ही यहाँ मौजूद ही हैं, तो हम इसको उस वक्त तक के लिए मौखर करते हैं जब तक कि बहरिया की ये एक्सरसाइज चल रही है। साहब ये बता दें कि आप वफाक के नुमाइंदे भी हैं, एमकेएम राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर, आप मुसलसल वफाकी हुकूमत जो है जब भी एमकेएम को शहर के लिए काम करने जाती है या कोई अपने हुकूक के लिए लोगों के निकलने की बात करती है, वफाक की जानिब से तो मैं रुकावट बन जाऊँ। किसी जरिए अच्छा आगे सवाल करने में तो अच्छा चले कर ले सवाल। वफाकी हुकूमत आपके जरिए या किसी और जराए से एमकेएम को वो प्रोग्राम करने से रोक देती है, तो एमकेएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वफाक ने पीपल्स पार्टी से कोई बात करके आपको कोई मैसेज दिया कि एमकेएम से बात की जाए कि पीपल्स पार्टी ये मुज़ाकरात करने को तैयार है या मान ली? देखिए, इसका जवाब मैं आपको दे दूं कि सबसे पहले तो मैं इस कराची का बेटा हूं, और जिस तरह पहले पाकिस्तान है इसी तरह, क्योंकि पाकिस्तान का दिल कराची है, पाकिस्तान का मईशत का हब कराची है, और मैंने जैसे कहा कि मैं भी कराची का बेटा हूं, और एमक्यूएम पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ था। उसके बाद जब खालिद भाई ने मुझे नॉमिनेट किया एज़ गवर्नर सिंध, तो मैं पूरे सूबे का गवर्नर हूँ, तमाम ही सियासी जमातों का गवर्नर हूँ और वफाक का नुमाइंदा हूँ। तो जब भी, जैसा आपका सवाल था कि कोई ऐसा इशू होता है जिस पे वफाक या सूबे में मौजूद कोलिशन पार्टनर्स कोई बात करना चाहते हैं तो वो राब्ता करते हैं। मैं उसी बात को उसी तरह खालिद भाई के सामने रखता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि कराची के और पाकिस्तान के मफाद को पहले रखने की वजह से हमेशा बात मान ली जाती है, लेकिन आज खालिद भाई ने दो टोक अल्फाजों में ये कहा है कि बहुत हो गया, ठीक है, आज की इस बात को हम मान लेते हैं उस वक्त तक के लिए जब तक ये एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन उसके बाद जो उनका मौक़िफ़ है उससे किसी सूरत में भी दस्तबरदारी नहीं होगी। तो ये भी आप पैगाम मैं आज लेके चला जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। ये आखिरी सवाल है। देखिए, आपकी बात किसी हद तक सही है, लेकिन वो बात 12 सितंबर था हमारा, कौन सा 22 अगस्त से पहले तक की थी। 22 अगस्त के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के सारे फ़ैसले कराची में होते हैं, राब्ता कमेटी में होते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अफ़ाम व तफ़हीम का मतलब मैनेज होना नहीं होता। अफ़ाम व तफ़हीम का मतलब ये होता है कि मामले को किसी हल की तरफ ले जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो मेरा किरदार आप सबके सामने रहा है, आपने तो खैर रहमान मलिक साहब के साथ जोड़ दिया, तो वो तोड़ने वाले थे, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं जोड़ने वाला हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल था ये। एक तो ज़रूरी नहीं कि हम धरना फिर वहीं करें, धरना ऐसा ना हो फिर शहर की हर गली कूचे में हो रहा हो, हर इलाके में हो रहा हो, हर टाउन में हो रहा हो। मेरा ख्याल है हमारे पास यही ऑप्शन छोड़ा गया है, तो फिर धरना फिर कराची में हर जगह रहा होगा, इंतज़ार कीजिए। और दूसरा ये कि PSL के लिए मैं मैसेज लेके नहीं आऊँगा, ये मैं भी बता रहा हूँ।